اگر آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس حوالے سے کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی جائیں اور پی ایس ایم یو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہول سیل میں ہو گئی تھی، آج 145 روپے ہو چکی ہے۔ یہ یقیناً جب محرم کے مہینے اپنے رمضان کے بابرکت مہینے آتے ہیں تو اس میں ہمارے یعنی دکاندار حضرات یا شوگر کارٹل یا یہ سٹا مافیا کم سے کم تو رحم کرنا چاہیے۔ یہ رمضان ایک فیسٹیول ہے اور بابرکت مہینہ ہے، اس میں بھی سوچنا چاہیے ہمیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آٹے میں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 50 روپے میں گندم کسانوں سے لی گئی، 33 ملین ٹن کا کروپ ہوا۔ اس کا اندازہ لگا لیں کہ 25 ملین ٹن ہمارے پاس رہ گیا، اور باقی جو ہے نا فیڈ مل اور ذخیرہ اندوز لے اڑے، اور فلور مل مالکان نے بھی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور آنے والے دن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کے پی کے میں گندم نہیں مل رہی، بلوچستان میں نہیں ہے۔ اصل میں چاروں صوبے ایک ہی ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان زنجیر ہے چاروں صوبوں کی، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب۔ اب جہاں آپ ڈی ریگولیٹ کی بات کرتے ہیں، ڈی ریگولیٹ سے کیا نقصانات ہوئے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ڈی ریگولیٹ کرنے سے جو ہمارا پروکیورمنٹ نہیں ہوا، جب ہم ڈی ریگولیٹ کی پالیسی اپنائی تو اس سے نقصانات کسان بھائیوں کو بھی ہوئے، کیونکہ ان کو معاوضہ نہیں ملا اس فصل کا، اور ڈائریکٹ کنزیومر جو ریٹیلر ہوتا ہے ان کو بھی آج یہ آٹے کا تھیلا جو 660 روپے 10 کلو کا ملتا تھا، آج 120 روپے 130 روپے کلو کا آٹا، 1300 روپے کلو، 1300 روپے کا 10 کلو کا آٹا۔ فیملی کا اندازہ لگا لیں گے 8 جانے ہوں تو 10 کلو کا آٹا تو 4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کہاں سے افورڈ کریں؟ مصنوعی بحران ہے یا آپ سمجھتے کہ بحران آ گیا یا آئے گا؟ یہ دیکھیں، اگر اس کے اوپر قدغن لگاتے نا، ڈی ریگولیٹ کرنے سے پروکیورمنٹ بھی ہوتی، اور پروکیورمنٹ میں ہمارے چاروں صوبوں میں ہو جاتی۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ چلو ہم سمجھتے ہیں کرپشن ہے، مان لیا آپ کی بات، اس ادارے کو ختم کرتے اور اس کی جگہ کوئی اور فورس قائم کرتے تو ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہو جاتا، پرائیویٹ گوداموں میں رکھا جاتا، پرائیویٹ سیکٹر سے، پرائیویٹ بینکوں سے کسان کے لیے لون دی جاتی، تو یہ عالم نہیں ہوتا۔ 50 روپے کی چیز 100 روپے ہونا، 106 روپے گندم، ڈبل ریٹ۔ آپ سمجھ رہے ہیں اربوں روپے کا ٹیکہ لگا ہے کسانوں کو بھی اور جو روٹی کھانے والے حضرات ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی غریب کوئی 35-30 ہزار والا کیا گروسری لے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کی فیسیں بھر سکتا ہے؟ کیا وہ کپڑا لے سکتا ہے؟ کیا وہ بجلی کے بل، گیس کے بل بھر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر روٹی سے گزارا ہو رہا ہے، روٹی اور پانی سے۔ امپورٹ میں سر کیا پریشانی تو نہیں ہو رہی، اور کیا کیا چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں ابھی دیکھیں آسانی سے؟ ابھی دیکھیں ہماری جو دالیں ہیں، بیسک امپورٹ ہوتا ہے 80%، جو ہمیں دنیا کے مختلف حصوں سے منگانی پڑتی ہے، 18 لاکھ ٹن ہمیں منگانی پڑتی ہیں۔ اس کی جگہ ہمارے ہاں اوور امپورٹ ہو جاتا ہے 27 لاکھ ٹن، کبھی 30 لاکھ ٹن۔ اوور امپورٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ پاکستان کا زر مبادلہ ضائع کیوں کیا جاتا ہے؟ امپورٹ پالیسی اور ایکسپورٹ پالیسی بننی چاہیے، جب تک نہیں بنے گی یہ المیہ ہی رہے گا۔ ایڈیبل آئل کو آپ دیکھ لیں، جو ہم پام اور اولین وغیرہ منگاتے ہیں، 36 لاکھ ٹن ہماری کھپت ہے سالانہ، اس کی جگہ 46 لاکھ ٹن آ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زر مبادلہ بھی ضائع ہی ہو رہا ہے نا، ڈالر کی شکل میں ضائع ہو رہا ہے۔ تو فیکٹ اینڈ فگر جو دنیا میں لیے جاتے ہیں کہ ہمارے کو کیا ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کتنا منگانا چاہیے، بر وقت اقدامات ہوں تو یہ معاشی پالیسی ایک دم ایکوریٹ جائے گی۔ ہم قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کے قرض دار ہیں، ہر آدمی قرض دار ہے 4.25 لاکھ روپے کا۔ ہم نے تو قرضہ نہیں لیا تھا، نہ ہمارے غریب لوگوں نے لیا، نہ مڈل لوگوں نے لیا، چند اشرافیہ۔ آپ ان کی تنخواہیں دیکھیں 600% بڑھ چکی ہیں، ان کی مراتیں دیکھیں، ان کی جو گاڑیاں دیکھیں، لیوش ان کا ماحول ہے، ایئر ٹکٹ دیکھیں۔ تو یہ غریبوں کے لیے یا مڈل لوگوں کے لیے تو یہ ملک بنا ہی نہیں ہے، میرے کو ایسا لگتا ہے۔ بنایا گیا تھا قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے بنایا تھا، اور یہی ہمارا ایم تھا کہ اسلام کے نام پہ ہوگا۔ اور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں جو ہے نا یعنی کرپشن کرپشن کرپشن، یہ کب تک چلے گا؟ آپ بتائیں کہ
2,50,00,000 टन गंदम वो कहाँ गई? देखें आप, यही हुआ ना हमारे साथ। अगर यही चीज हमारे पास होती तो हम 60 रुपए या उनको किसानों को 3,000 का रेट दे देते तो 75 रुपए हो जाती। तो 75 रुपए में नॉर्मल आदमी भी खा लेता, आटा सस्ता मिल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डीरेगुलेट पॉलिसी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सरमायादार, बैंक से लोन लेने वाले, चंद अशराफिया के लिए ये हो जाता है और जखीरा अंदोजी हो जाती है। जब जखीरा अंदोजी हो जाती है तो जो आप फ्री मार्केट कहना चाह रहे हैं, तो फ्री मार्केट कहाँ से होगी? जब जखीरा अंदोजों के हाथ में आ जाती है। यहाँ तो इतनी सहूलतें दी हुई हैं बैंकों ने और सब ने, तो जखीरा अंदोज फल फूल रहे हैं और गरीब और मिडिल लोग फंसे हुए हैं। अच्छा सर, जो क्रोकरी के बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं, क्या स्टॉक की तरफ आने का के लिए क्या उनका ज़हन कह रहा है? क्या क्या कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ या शेयर देखें मार्केटिंग की तरफ? देखें स्टॉक एक्सचेंज एक इंटीग्रेटर कहते हैं लोग कि ये इंटीग्रेटर है इकोनॉमी का। ऐसा नहीं है। आप ये समझ लें कि 10-20 हज़ार अकाउंट या 50,000 अकाउंट होंगे ये, तो ये मईशत को इंटीग्रेट नहीं कर रहा है। देखें हमारा ज़र मुबादला कहाँ से आएगा अब? ये भी सोचना है। जब एक्सपोर्ट पे तवज्जो देंगे, जब एग्रीकल्चर पे तवज्जो देंगे, जब हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बनाना जा रहे हैं और इसकी जगह हम एग्रीकल्चर को फरोग दें, एग्रीकल्चर के लिए इकदाम उठाएं और किसानों को रिलीफ दें, जब जाके हमारा ज़र मुबादला भी बचेगा और हमारी जो अजनास हैं, ग्रोसरी आइटम, वो भी यानी कम से कम सतह पे होंगी। देखें दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही होता है कि 15 दिन का डेटा लिया जाता है, महीने का डेटा लिया जाता है कि अभी फेक फिगर क्या है। वो किसी टाइम ड्यूटी लगा देते हैं, किसी टाइम ड्यूटी हटा देते हैं। इसी तरह इकदाम होते हैं जो हुकूमत वक्त के लिए भी अच्छा है कि वो इन इकदाम को करें, माशी पॉलिसी लाएं। और जब तक आप माशी पॉलिसी नहीं लाएंगे, ये देखो गोल्ड में जा रहे हैं लोग, चांदी में जा रहे हैं, कोई कारोबार कर रहा है? आप मुझे बताएं। जब कारोबार कोई आदमी भी जाता है नफे के लिए जाता है, कोई बिजनेसमैन भी हो वो नफे के लिए जाता है। 1 लाख की सतह थी ये स्टॉक एक्सचेंज की, वो तकरीबन 1.25 लाख पे पहुंच चुकी है या ज्यादा हो गई होगी, हम तो नहीं जानते, लेकिन ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। और ये टॉप 10 ही चल रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। बाकी हमारी इंडस्ट्रियां तो बंद हो रही हैं। ऐसे ही 170 के करीब इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, 41% बेरोजगार हैं। तो आप ये बताएं कि वो कहाँ से रोटी खाए, वो क्या करे, बच्चों को कहाँ ले जाए? ये हमें अलमिया सोचना पड़ेगा। ये हुकूमत वक्त को भी सोच रहे हैं और सब सोचें, दर्द दिल रखें, किसी के लिए कोई बेहतर इंतजाम रखें। हमारे एम्प्लॉयज हैं जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो 40% तो कटौती उसकी हो जाती है, टैक्स की कटौती हो जाती है। सबसे बड़ा टैक्स पेयर जो टैक्स देते हैं वो नौकरी पेशा देते हैं लोग, गवर्नमेंट सर्वेंट, ये वो प्राइवेट सेक्टर वो देता है। और बाकी आप देखें तो ये फिर कहाँ जाए? ये 35,000 या 65,000 तनख्वाह भी है तो 40% तो कटौती हो जाती है। फिर लास्ट कंज्यूमर होता है, ये 18% जीएसटी अलग भरते हैं, तो कहाँ से सरवाइव करेंगे? ऐसे ही। हमें हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। ये हमें एफबीआर के चेयरमैन को भी सोचना चाहिए कि एक तो चीनी में मैं एक बात समझ ही नहीं पाया कि फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है। फाइलर वो होता है कि जो टैक्स भरता है वो फाइलर होता है, और जो नॉन टैक्स होता है, तो वो जो नॉन टैक्स का क्या मतलब है, नॉन फाइलर क्या मतलब है? क्या चीनी ऐसे निकल सकती है? 18% उनको जीएसटी देनी पड़ती है, सेल टैक्स नंबर होना चाहिए, इनकम टैक्स नंबर होना चाहिए, तो हमारे आधार और शुमार भी मिल जाएंगे। लेकिन आधार और शुमार भी चीनी हमारी इंपोर्ट की गई, पहले एक्सपोर्ट कर दी 7.5 लाख टन। पिछले वक्तों में इमरान खान के दौर में भी हुआ और इस दौर में भी हुआ। 7.5 लाख हमने 100 रुपए के रेट में हमने एक्सपोर्ट कर दी, मंगाई 170 के रेट में 3,20,000। आज भी टीसीपी की गोदामों में मौजूद है 1.5 लाख टन, वाफिर मिकदार में चीनी है। लेकिन सवाल ये होता है कि हमें किसी को आखिरत का सवाल पता नहीं होता कि आखिरत में हम कहाँ जाएंगे। 70-75 साल उम्र हो गई हैं, किसी की 65 साल है, तो क्या वक्त जाने का है? तो हमें लोगों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, गरीबों के लिए रिलीफ दें,
रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। आप उम्रा करें, हज करें या कोई भी नेकी करें, हुकूकुल इबाद से बड़ी नेकी कोई भी नहीं है। हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला पूछेगा कि आपने उनके लिए क्या किया, गरीब लोगों के लिए, मिडल लोगों के लिए क्या किया। अच्छा सर, एक सवाल है, जैसे कि अगर आपकी जो 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 गुजारिशात हैं हुकूमत से, अगर वो हल हो जाएं और जो कॉटन एक्सचेंज है और अगर वो दोबारा खुल जाए, जिससे उनको सील कर दिया गया है, ये जो मामलात हैं, इससे स्टॉक एक्सचेंज पर काफी असर पड़ता है, क्या आप ये समझते हैं या नहीं? देखें, ये जो कॉटन एक्सचेंज है, कॉटन का तो हमारा काम ही खत्म हो गया। बात ये है कि कॉटन की जो ग्रोथ पहले होती थी, फैक्ट्रियाँ चलती थी, अब वो तो आप फैक्ट्रियों पे ताले लगे हुए हैं, जिनिंग फैक्ट्री पे। अब ये ड्यूज़ होंगे तो उसके लिए मेरा ख्याल सील हुआ है ये, और ड्यूज़ ज़्यादा हो गए होंगे, 1960 से नहीं भरे हुए। तो आगे जाके भी ये हमें सोचना पड़ेगा कि उसको भी अपडेट करना चाहिए। और देखें, कॉटन जो हमारा बेसिक वो था एक्सपोर्ट के लिए, यानी हमारा कॉटन एक्सपोर्ट भी होता था, अब हम इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं। अब ये इंडस्ट्रियाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ, किसी कहीं 5,000 कहीं 10,000, टॉप 10 इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, और 170 के ज़्यादा आप ये फैक्ट्रियाँ बंद होना, उनके ऊपर इतने टैक्सेस हैं, 73 किस्म के टैक्सेस हैं, 60 किस्म के टैक्सेस हैं, कहाँ से सर्वाइव करेगा? तो बेरोजगारी बढ़ रही है। हमें एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी है, हमें इंडस्ट्रियल पे तवज्जो देनी है, हमें ये सोच लानी है कि कर्ज पे कर्ज हम लिए जा रहे हैं। ये कर्ज लेके क्या करेंगे आखिर? ये कर्जा आखिर एंड ऑफ द डे तो गरीब और मिडिल लोग ही भरेंगे ना, और कौन भरेगा भाई? तो हमें कर्ज से, आईएमएफ की से छुटकारा लेना चाहिए। और ये शराइत इतनी सख्त होती हैं कि डीरेगुलेट, ये चीज़ें होती हैं, ये पब्लिक के मफाद में नहीं है। आईएमएफ भी देखे कि आईएमएफ अगर ये सोचती है कि जी हमने 50 रुपए की गंदम किसानों से लूट ली और ज़खीरा अंदोज़ों ने फ़ायदा डबल रेट पे उठा लिया, तो गंदम में क्या हुआ? तो आईएमएफ ये कहता है कि डबल रेट कर दें, ज़खीरा अंदोज़ी करें और इस तरह हम कोहराम मचाएँ। या चीनी में अगर 100 रुपए की कॉस्टिंग की चीज़ 200 रुपए में बिक रही है, तो कोई कोहराम मचा लें हम। ये किस तरह के मामलात हैं? हमें सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, और पाकिस्तान के लिए सोच पैदा करनी है। बगैर पाकिस्तान के हम भी नहीं चल सकते, हमारी पहचान ही पाकिस्तान है, और हम इसी मट्टी में जाएंगे। और इंशाल्लाह सब ने मिल के ताउन करें तो ये मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसके ऊपर हर जगह हर चीज़ है, समंदर है, दरिया है, ज़मीन है। लेकिन हमारी ज़मीनों की भी ये हालत हो गई है कि जो एग्रीकल्चर की ज़मीन है, वो भी इंडस्ट्री वालों को दे दी गई हैं या सोसाइटी बन गई हैं। वो नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर की ज़मीन एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया।